تو بچے چلے گئے وہاں پر ذرا انجوائے کرنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، تو پھر اچانک پانی آ گیا۔ صاحب نے خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا، تو اس نے بولا کہ بچے جو ہیں وہ سب پانی میں پھنس چکے ہیں۔ کیونکہ ٹیم آئی ہے وہاں پر، میرے سننے میں تو یہی آیا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، یہاں پر اسٹے کیا ہے، تو ناشتے کے بعد پھر یہاں سے آگے تو جائیں گے۔ شرافیہ کے لیے وسائل ہیں، ہم غریب طبقہ، ان کو کہاں وسائل میسر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور میں نے آپ کو سانحہ سوات میں جاں بحق ہونے والے تمام افراد اور ان کی میتیں کس طرح سے سوات سے یہاں ڈسکا پہنچائی گئی اور وہ دل خراش مناظر آپ تک پہنچائے کہ وہ بدنصیب فیملی جو سیالکوٹ ڈسکا سے وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتی ہے اور ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آج ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یقیناً وہ تمام مناظر آپ نے دیکھے اور پھر آپ نے کھل کر اس پر تنقید بھی کی، لیکن وہ فیملی کیسے اس دریا تک پہنچ گئی، سوال تو یہ بنتا ہے اور ہم یہ سوال کریں گے بھی۔ ہم نے وہ تمام تر مناظر دکھانے کے بعد آج اس وقت ڈسکا کے اس غمزدہ خاندان کے ساتھ میں موجود ہوں جن کے 10 افراد میں سے 9 افراد کی جو میتیں ہیں وہ انہوں نے سپرد خاک کر دی ہیں، لیکن ابھی بھی ایک بچہ جس کی عمر 17 سال ہے اور عبداللہ نامی وہ بچہ جس کی لاش کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں پر آپریشن چل رہا ہے۔ ان کو کیسے پتہ چلا اور جو بچ کر واپس آنے والی فیملی کے افراد تھے انہوں نے کیا بتایا کہ یہ سانحہ کس طرح ان کے ساتھ پیش آیا، اور جو ایک تصویر جو پورے سوشل میڈیا پر آگ کی طرح وائرل ہے اور اس تصویر نے ہر درد دل رکھنے والے انسان کو یہ مجبور کر دیا کہ اگر آج آپ ان لوگوں کے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل اس طرح کا واقعہ آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ وہاں کی انتظامیہ نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی، اس کیس کو، اس سانحے کو دبانے کی کوشش کی۔ ہم بات کرتے ہیں اسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی 2 بیٹیاں اور ان کی وائف اور ایک بیٹا اس حادثے میں جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ایک بیٹے کی تلاش، ایک بیٹے کی لاش کے یہ منتظر ہے۔ اعلیٰ حکام سے ہمارا مطالبہ ہے، اپیل ہے کہ آپ زندہ افراد کو تو بچا نہیں سکے، کیونکہ آپ کو انتظار ہوتا ہے کہ جب تک لاشیں نہ گریں، جب تک لوگ نہ مریں، ہم تب تک کوئی کام نہیں کریں گے۔ ان سے سارا واقعہ جانتے ہیں کہ ان کے پیاروں کی میتیں جو ہیں لانے میں کتنی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ اسلام صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، آپ کے لیے یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ آپ بتائیے گا کہ یہ جو سارے 10 افراد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان میں آپ کی بھی بچے ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور جو باقی افراد ہیں وہ کون ہیں؟ باقی جو ہیں وہ میری سسٹر ہے، اس کی 4 بیٹیاں ہیں، اور ایک دوسری سسٹر ہے، اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے۔ تو اسلام بھائی، جب یہ ساری فیملی اکٹھی ہو کے گئی تھی وہاں سوات پہنچے، جہاں پر آخری بار یقیناً آپ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہوگی اپنے بچوں کے ساتھ یا کسی اور دوسرے فیملی ممبر کے ساتھ، تو کیا بات ہوئی تھی اس حادثے سے پہلے؟ حادثے سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے مجھ سے بات ہوئی تھی بیوی سے۔ اچھا، اس نے بتایا کہ ہم ناشتہ کر رہے ہیں، یہاں پر اسٹے کیا ہے، تو ناشتے کے بعد پھر یہاں سے آگے تو جائیں گے۔ آگے انہوں نے کہاں تک جانا تھا؟ آگے بحرین، مدین، کلام، ادھر جانے کا ان کا پروگرام تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی اپنی بچوں کی، ناشتہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ہوٹل میں۔ اچھا، جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ہوٹل میں، جی، پراپر وہ ہوٹل تھا کہ دریا کا کنارہ تھا؟ پتہ نہیں، وہ مجھے تو کنفرم نہیں پتا، وہ اندر کی ویڈیو ہے۔ اچھا، وہ اندر کی ویڈیو، ٹھیک ویڈیو ہے۔ بس یہ شاید آدھا منٹ کی ویڈیو ہے، اس نے مجھے بھیجی تھی، تو میں نے اسے بولا میں چلو ٹھیک ہے، بچوں کے ساتھ ہی انجوائے کروں۔ اور اس کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی والد صاحب نے فون کیا ہے شہباز کو، میرا بہن ہوئی ہے وہ۔ آپ کے والد صاحب بھی گئے ہوئے تھے ساتھ؟ والد صاحب ادھر تھے گھر میں، میں بھی گھر میں ہی تھا۔ اچھا، آپ بھی گھر میں تھے؟ میں بھی گھر میں تھا، میں بھی نہیں ساتھ گیا۔ تو والد صاحب نے خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا، تو اس نے بولا کہ بچے جو ہیں وہ سب پانی میں پھنس چکے ہیں۔ میں نے پھر زیادہ بات نہیں سنی، تو میں پھر سوات کے لیے گھر سے نکل گیا اسی وقت ہی۔
ना किसी को मोहल्ले में किसी को बताया, ना किसी से बात हुई। तो बाकी ये भाई थे सारे इधर पीछे। अच्छा सर, तो इन्होंने पीछे से मामला देखा है। ठीक है, आप जब आपको पता चला कि हादसे में ये हो गया मामला, तो क्या बताया था कि बच्चे या फिर जितने भी अफराद थे वो दरिया के अंदर कैसे चले गए थे? वो मुझे तो यही पता चला है कि उस वक्त पानी नहीं था, खाली था, सूखा था दरिया? सूखा था वो। तो बच्चे चले गए वहाँ पर ज़रा इंजॉय करने के लिए, बैठने के लिए। तो फिर अचानक पानी आ गया। और सर, पानी जो है, उनको बच्चों को दरिया के अंदर जाने से इंतज़ामिया ने रोका नहीं? किसी ने रोका, कोई आदमी नहीं था वहाँ पर इंतज़ामिया का या कोई और। लेकिन इंतज़ामिया तो कहती थी कि हमने अलर्ट जारी किया था, दफ़ा 144 जो है वो नाफिज की हुई अब थी। जो दूसरे सूबों से लोग आते हैं उनको क्या पता है हाँ, वहाँ पर की है नहीं की, या वहाँ पर कोई साइन बोर्ड लगा है, हाँ, कोई ममनू का बोर्ड लगा है। वैसी तो कोई चीज़ नहीं है ना वहाँ पे। यहाँ तो ममनू का बोर्ड लगा हो या कोई रास्ता ब्लॉक किया हो। और तो शहर फिर के तो अंदर था ना, समझ शहर के आती अंदर दरिया था और उसके किनारे पे खड़े थे ये। तो जब एक वीडियो जो वायरल हुई कि एक दरख्त के नीचे जो है वो फैमिली खड़ी है, वो आप ही की फैमिली थी? हाँ जी, वो मेरी फैमिली। तो उनको बचाने के लिए क्यों इंतज़ामिया ने, जो बड़े बड़े वसाइल उनके पास होते हैं ना, देखिए हुकूमत के पास ही सारा कुछ है ना, बेशक। तो हुकूमत ने क्यों उनको बचाने के लिए इन वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया? ये अवाम के लिए तो वसाइल नहीं है, अशराफिया के लिए वसाइल हैं। हम गरीब तबका, इनको कहाँ वसाइल मैसर होते हैं। तो अशराफिया के लिए सब वसाइल हैं। अगर इनमें कोई मेजर का या कोई डीसी का, एसी का, या किसी सियासतदान के बेटे होते, औलाद होती वहाँ पर, तो दुनिया की सारी मशीनरी वहाँ पर 10 मिनट में पहुँच जानी थी। लेकिन मैं सर वहाँ पर जाकर मैंने लोगों को वो सारे मनाज़र दिखाए, बड़े दिलखराश मनाज़र थे, हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। वहाँ मैं चीफ़ सेक्रेटरी साहब जो सूबाई चीफ़ सेक्रेटरी हैं, वो वहाँ पर मीडिया टॉक की, उनसे सवाल किया था कि हेलीकॉप्टर भी तो है। तो उनका ये कहना था कि हेलीकॉप्टर को आते आते यहाँ तक घंटा भी लग सकता था, और अगर बिलफर्ज हेलीकॉप्टर आ भी जाता तो उससे भी नुकसान हो सकता था। वो किस तरह से कह सकते हैं कि जी हेलीकॉप्टर के आने से नुकसान हो सकता था? जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जाते हैं लोगों को बचाने के लिए, क्या हेलीकॉप्टर के जाने से आप समझते हैं कि लोगों को नुकसान हो सकता था या बच सकते थे? वो बच सकते थे, नुकसान क्यों होता? आप दुनिया की जितनी भी ये रेस्क्यू टीमें हैं, हाँ, उनको आप देखें, उनके काम देखें कैसे करते हैं वो। बिल्कुल। ये तो हेलीकॉप्टर से तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन चलो होता ना होता वो तो ये बाद की बातें हैं, बिल्कुल, कि इंसान बच सकते या ना बच सकते, हाँ, ये सब बात की बातें हैं। पहली बात तो यह है कि रेस्क्यू को अपना काम करना चाहिए था। जब रेस्क्यू की टीम आई है वहाँ पर, मेरे सुनने में तो यही आया है कि उनके पास कुछ भी नहीं था, सेफ्टी नहीं थे उनके पास। अगर उनके पास सेफ्टी नहीं है तो रेस्क्यू टीम को आने का फ़ायदा क्या है? मौके पर पहुंच गई है, टाइम है उनके पास, सब कुछ है, लेकिन टूल नहीं है। जब टूल्स ही नहीं है तो काम कैसे करेंगे? सर ये ये सरकारी तो अदारा है ना? सरकारी नाअहली है ना। तो सरकार ने अपने तौर पर जो है कुछ 4-5 जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको सस्पेंड कर दी है। क्या उनको सस्पेंड करने से आपके दुख में कोई कमी आई है? तो उनका क्या फ़ायदा है? सस्पेंड कर दिए हैं, हमारा तो नुकसान हो गया। बहाल हो जाए ना हो, सब कुछ भी ना हो, हमारा तो नुकसान हुआ, वापस ना हो। केपी हुकूमत की जानिब से आपके तमाम मरने वाले अफराद के लिए 15 लाख रुपए का जो है वो मुआवजे का ऐलान किया है। ये इस पर आप क्या कहेंगे? इसका क्या फ़ायदा है पैसे का? तो फ़ायदा है, बच्चे वापस मैंने तो आ उनसे जाएंगे। सवाल किया था कि जिंदा को बचाने के लिए पैसों, आपके बजट में पैसा नहीं होता, लेकिन मरे हुए के बाद जो है ना वो आप जो इस तरह के ऐलान कर देते हैं, उसका फ़ायदा नहीं। ये 15 लाख वो बजट के आवाम को बचाने के लिए इस्तेमाल करें, टूल रखें। टूल क्यों नहीं है? अब आपका एक बच्चा जिसकी लाश अभी तक नहीं मिली, आप उस बच्चे की आखिरी दीदार करने के लिए मुंतज़र हैं, उसकी लाश की हमने तो अल्लाह से यही उम्मीद रखी है शायद ज़िंदा मिल जाए, यही उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अल्लाह ताला को सबब पैदा फरमा दें। इसी इंतज़ार में है कोई अच्छी खबर मिल जाए, बाकी जो अल्लाह की रज़ा। वहाँ की इंतज़ामिया के साथ आप राब्ते में हैं?
मैं तो ज़ाती तौर पर राब्ते में नहीं हूँ। आपके साथ किसी ने इंतजामिया सरकारी तौर पर कोई राब्ता नहीं रखा? नहीं, मुझसे किसी का राब्ता नहीं। तो सर जब इन प्यारों की जो 8 अफराद की मैयतें आप साथ लेकर आए, 9वीं तो बच्ची की बाद में मिली वो ना? मैं लेके आया हूँ। ठीक है ना। तो वो मुझे सर ये बताएं कि जो 8 अफराद की सबसे पहले मैयतें आई, उसको लाने में सरकारी तौर पर आपके साथ क्या किस किस्म का कोई तावन किया गया है? मुझे तो इतना इल्म नहीं है इस बात में, क्योंकि मैं सवात चला गया था। आखिरी जो मैयत है नहीं, 8वीं जो मैयत है हाँ। वो मैं लेके आया था वहाँ सवात से। ठीक है। हॉस्पिटल है, सेंट्रल गार्बन हॉस्पिटल है। तो मैं तकरीबन 9:30-10 बजे वहाँ पर पहुँचा था। उस वक्त तो इंतज़ामिया का रवैया अच्छा था, ठीक है। पहले का मुझे नहीं है पता। और बाद में आपके साथ किसी ने राब्ता बाद नहीं में किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया। तकरीबन वहाँ से 12-1 बजे हम वापस आए हैं किया? विशाल की मैयत लेके। तो उस वक्त तक तो पुलिस का, हॉस्पिटल की इंतज़ामिया का रवैया अच्छा था। पहले का मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानता वक़ूआ। सर आप क्या समझते हैं कि इस अफसोसनाक दिल खराश हादसे के पीछे जो कुताही है, जो गलती है, आप समझते हैं कि वो किसकी हो सकती है? रेस्क्यू 1112 की हो सकती है, जिनका काम है बचाना, या फिर जिनका काम है कि अहकामात जारी करना कि किसी सूरत भी कोई नुकसान ना होने पाए, सबको सेफ साइड जो है ना वो पहुंचाया जाए? तो आपकी नज़र में कौन कसूरवार है? मेरी नज़र में दोनों ही हैं, दोनों कसूरवार हैं। हुक्म सादर करने वाले भी और हुक्म को फॉलो करने वाले भी, दोनों ने अपना काम सही नहीं किया। काम सही कर जाते आदमी बेशक ना बचते, फिर भी अफसोस नहीं था। कोशिश तो कर लेते, लेकिन किसी कोशिश किस्म भी की नहीं कोई हुई। कोशिश नहीं कोशिश की। भी नहीं हुई। 2 घंटे चलाते रहे ना। 2 घंटे बच्चे वहाँ पर रोते रहे हैं, चीखते रहे हैं, अवाम चीखती रही है। 2 घंटे में जो मुल्क एक बच्चा नहीं बचा सका, इंतज़ामिया जो एक बच्चा नहीं बचा सकी, आप फिर खुद अंदाज़ा कर लें। सर हमारे पास तो इंतज़ामिया- ताकत है, हम तो इंतज़ामिया दुश्मन के क्या है? त्यारे गिरा देते हैं, तो अपने बच्चों को क्यों नहीं बचाया गया? वो तो फौज का काम है ना। फौज ने तो अपना काम अच्छा किया। हाँ। जब उनको उन पर वक्त आया है तो फौज ने अच्छा काम किया तो है। ये भी फौज के ये- अपने बच्चे हैं। ये फौज के अपने हैं, लेकिन फौज का काम तो ये नहीं था ना। ये तो काम था एसी का, डीसी का, रेस्क्यू टीमों का, ये उनका काम था। हाँ, अगर इन्होंने फौज को हुक्म दिया है, ऑर्डर दिया है कि भाई हमसे नहीं हो रहा, हाँ। तुम लोग हमारी मदद करो, बिल्कुल। तो अगर फिर ये फौज ने इनकी मदद नहीं की तो फिर तो हम कह सकते हैं कि भाई फौज ने इनकी मदद नहीं की, लेकिन ये फौज का काम तो नहीं था। लेकिन सर वो जब जिंदा थे, उनकी वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल थी। क्या किसी भी हमारे ऐसे किसी बड़े सरपरस्ते आला की नज़र से वो वीडियो नहीं गुजरी कि मैं खुद से ही जो है ना वो अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करूं, ताकि मैं कम से कम इनको बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो जो आर्डर है वो मैं जारी करूं? अगर ज़मीर ही ज़िंदा हो तो मुल्क का ये हाल ही ना होता। आज एहसास नहीं है, एहसास ख़त्म है। एहसास होते हैं तो मुल्क तो हमारा माशाल्लाह बहुत आगे जाता। सर इस हादसे के बाद केपी हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने, क्योंकि यहाँ से आपके बच्चे गए थे, आपके अपने गए थे, इन दोनों में से, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि एक दूसरे पर जो सियासत के जो तीर है ना वो बरसाए जा रहे हैं। अमली तौर पर किसी किस्म का कोई ऐसा आर्डर, कोई ऐसा कानून नहीं पास किया जा रहा जिससे आपको या मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो पंजाब हुकूमत की जानब से भी किसी ने आपके साथ रब्ता किया, या फिर ये सियासत की जो जंग है सिर्फ वही लड़ रहे हैं और उसके लिए जो है वो उनको कुछ नहीं लगता कि जी वो चाहे एक शख्स कोई मरे चाहे कोई 10 मर जाए? पंजाब हुकूमत की तरफ से तो यहाँ की MNA मगालबन नशीन वो आई थी 2 दफ़ा मगालबन आई हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया है, तावन का इजहार किया है। बाकी तो मेरा ख्याल है कोई नहीं, किसी मेरी मुलाकात नहीं किसी से हुई। शायद वाला साहब की हुई हो मुलाकात, ठीक है, लेकिन मेरी नहीं है बाकी।